Okay, welcome to our classes. So, as we all know, that we are going to start our new chapter or new syllabus in English language of political science PSIR. So, this is our basically this is our basically a inaugurating session just to interact with you people, just to let you know about the project and to know about your preferences as well. So, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है, जो हमारा PSIR का जो सिलेबस है, जो कि हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट का पार्ट है. सो वी आर हैविंग अ प्रोजेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. इफ यू वांट अ प्रॉपर इंग्लिश कन्वर्सेशन और इंग्लिश लेक्चर, जस्ट लेट अस नो. और यू वांट अ बायलिंगुअल अप्रोच जिसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्सेशन लेंगे, दोनों में आपका लेक्चर चलेगा, we can go with that theme as well. So first of all, let us introduce what is the approach we are going to follow, what are the following topics we are going to have, and what is the how the project will move on. So this is about the introductory session. First of all, we are having a political theory. Political theory. In political theory, we will talk about the meaning, what is political theory and its utility. Okay, and then we will talk about the concepts of rights, liberty, equality, justice, secularism. For example, secularism, in secularism, we are having positive secularism, negative secularism, the secularism of the countries like France, the secularism of the countries like India. What is the difference between them? We are going to differentiate. And what about the rights? And we are going to talk about the rights as well. Here we will talk about different type of rights. We will talk about the fundamental rights. We will talk about the human rights we are having. We will talk about the origin of basically rights, the concept of rights, how it emerged, constitutional rights, legal rights, every kind of information regarding to rights. And then we will talk about the Indian Constitution. In Indian Constitution, we will take you to the origin of the Constituent Assembly, how the assembly came there, how the demand for the assembly raised, how the constitution was processed, which kind of committees were formed, who were there, who were leading the committees, what was fundamental right committee, what was general purpose committee, rest and all. Other than that, we will talk about the preamble of our part. So we all know we used to have our NCRT books. NCRT's books having the preamble, "We the people of India." So we the people of India, the origin of the term "we," origin of the term "the people of India." What does it literally mean to us? Is it amendable? Has it amended? Or can we amend it in the future? Such type of questions we are going to deal in that part. Then we will talk about the features of the constitution. What kind of constitution we are having, what kind of structure we are having, what kind of approach we are having, basic structure के बारे में हम जानेंगे. And then the fundamental rights. Most important part of the political theory or the political science is the fundamental rights. The DPSP, Directive Principles of the State Policy, which comes in the part fourth of our constitution. After that, we will talk about the concept of फेडरलिज्म. फेडरलिज्म क्या होता है? व्हाट इज इट इज इन थ्योरी, व्हाट इज इट इज इन प्रैक्टिस इन इंडिया? फेडरलिज्म किसे कहते हैं, कहाँ से ओरिजिन हुआ है, व्हाट इज द फेडरलिज्म ऑफ इंडिया? क्वाजाई फेडरल जो स्ट्रक्चर है, व्हाट इज दिस? क्वाजाई फेडरल किसे कहा जाता है? क्वाजाई फेडरल क्या चीज है? फ्रॉम वेयर वी हैव बोरोड दिस? इज इट फ्रॉम द कैनेडियन प्रिंसिपल और वी हैव जस्ट कॉपीड इट फ्रॉम द यूके? These routes are going in detail with the concept of federalism. And then we are going to follow the part of union government. Who comprise the union government? President, Prime Minister, Council of Minister, Parliament. Each and every prospect we are going in detail. We are going to discuss every part of the union government, which articles they deal with, when to deal with, how the election process take place, what is the process, how are they regulated. All these concepts are given in detail in the union government part. And after that, we have the state government. In state government, we are going to deal with the CMs, the governors, and the
concepts, panchayats, municipalities, all these things we are going to deal in the part of state government. After that, we are having local government, पंचायत्स, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, दीज थिंग्स. देन हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की. इंडियन पॉलिटिक्स में क्या आता है, व्हाट आर द चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग. हम चैलेंजेस क्या है नेशन की बिल्डिंग में, जो चैलेंजेस आते हैं, कास्टिज्म क्या होता है, व्हाट इज कास्टिज्म, व्हाट इज कम्युनलिज्म, व्हाट इज रीजनलिज्म, all these concepts are going to deal in the Indian politics. After that, we are going to deal with the party system. What kind of party system we are having? Is it a multi-party system, or is it a one party system like China, or it is a dual party system like the UK or the US? So these things we will be talking about the different kind of party system in different part of the world, not only confined to India. After that हम बात करेंगे इंटरनेशनल politics की. And this is the most favorite topic which I believe, because international politics is ever evolving. International politics keeps on changing, and you have to keep certain things in your mind. Just by knowing the part, we will start it from World War. We have in our syllabus we are going to deal with the Cold War, but to generate a base, एक बेस बनाने के लिए, एक पूरा हिस्ट्री बताने के लिए, वी विल स्टार्ट अ बिट फार फ्रॉम अ बिट फार, कि हम वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट करेंगे. एंड बिफोर दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द कॉलोनाइजेशन पार्ट, द ब्रिटेन, द फ्रेंच, द स्पेनिश, ऑल दीज थिंग्स. आफ्टर दैट हम कोल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर का एंड कैसे हुआ, यूएसएसआर कैसे टूटा, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, यूएसएसआर से रशिया कैसे बना, ऑल दिस थिंग्स. उसके बाद अमेरिकन हेजेमनी जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हाउ दिस इमर्ज्ड एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. Why people still used to say when America used to sneeze, world used to get cold. जब अमेरिका छींकता है तो दुनिया को जुकाम हो जाता है. ऐसे ऐसे स्टेटमेंट पास किए जाने लगे. क्यों पास किए जाने लगे, ऐसा क्या अमेरिका ने किया, ऐसी हेजेमनी अमेरिका की क्यों हो पाई, ये हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको कहूंगी कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया की व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी. नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है हमारी. पंचशील एग्रीमेंट की हम इसमें बात करेंगे. सबसे पहले किसके साथ ये एग्रीमेंट किया था, 1954, चाइना की हम बात करेंगे. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डील इन द फॉरेन पॉलिसी पार्ट. व्हाट अबाउट द यूएन, what is the role of India in the UN, that is the United Nation Organization, and India के जो दूसरे countries है उनके साथ क्या relations हैं. For example, India and the United States, India and Pakistan, India and the China, India and the Nepal, India and Bhutan, Japan, South Korea, Australia, and so on. So all these countries के साथ इंडिया के क्या रिलेशन है, एंड इंडिया एंड द नॉन अलाइनमेंट. वी ऑल नो दैट ड्यूरिंग द फेज ऑफ कोल्ड वॉर, और जैसे ही वो स्टार्ट हुआ, इंडिया ने हाथ खड़े कर दिए थे कि ना मैं तुम्हारा हूं ना मैं तुम्हारा हूं, मैं तो नॉन अलाइनमेंट के साथ चलूंगा. तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है, origin क्या है, व्हाट इज द origin, व्हाट इज द जेनेसिस बिहाइंड इट, हाउ इट originated, what is the purpose, and does it really helpful now, do we need it now? What is the importance of NAM in today's arena, in today's world? We are going to discuss that as well. आगे we will talk about the what are the challenges before India's foreign. Challenges क्या है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेके, ये सब डिस्कशन हम करेंगे. उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पार्ट आता है उसमें फिर से आपका पॉलिटिकल थ्योरी रहता है. पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न पर्सपेक्टिव के साथ लेकर चलेंगे. आफ्टर दैट स्टेट, नेचर, स्टेट इमर्ज कैसे हुआ, उसका नेचर क्या है, फंक्शन क्या है स्टेट का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेट, व्हाट आर द कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, प्लुरलिटी, गवर्नमेंट के क्या ऑर्गन्स होते हैं, जिसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जिसे हम बोलते हैं. जो पार्लियामेंट होता है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट कहा जाता है, यूके में भी पार्लियामेंट कहा जाता है, एंड कांग्रेस इज सेड इन यूएसए, एंड ड्यूमा कहा जाता है आपके रशिया में. अलग अलग जो है फीचर्स उनके बारे में जानेंगे. फेडरल असेंबली इसे स्विट्जरलैंड में कहा जाता है. ये सब बातें हम जानेंगे. जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव कौन है, यूके में कौन है, किंग है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, कौन है, उनकी बात करेंगे.
जुडिशियल सिस्टम की बात करेंगे कि जुडिशियल सिस्टम कैसा रहता है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, यूनिटरी स्ट्रक्चर है, यूएस का जुडिशियल स्ट्रक्चर कैसा है, इंडिया का जुडिशियल स्ट्रक्चर कैसा है। ऑल दीज एलिमेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दैट पार्ट ऑफ लेवल। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है हमारे पास, चेक्स एंड बैलेंसेस, टाइप्स, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, फेडरल और यूनिटरी, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन का थ्योरी, पॉलिटिकल पार्टीज यूके में कौन सी हैं, लेबर पार्टी कौन सी है, ठीक है, अपने यूएस में कौन सी पार्टीज हैं, रिपब्लिकन पार्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, डोनाल्ड ट्रंप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो बिडेन कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ओबामा कौन सी पार्टी के थे। All these things we are going to discuss in that part. And then the pressure groups, what are pressure groups, what role do they play, how they examine the politics of the global world, ठीक है, तो प्रेशर ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। एंड देन द पॉलिटिकल थॉट, कैन वी फॉरगेट दैट, प्लेटो, एरिस्टोटल, कौटिल्य, मैकेवली, हॉब्स, लॉक, रूसे, गांधी, अरबिंदो, अंबेडकर, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द पार्ट ऑफ political thought. And after that, dynamics of Indian democracy. Dynamics of Indian democracy से मतलब है कि जो हमारी इंडिया की जो लोकतंत्र है, जो भारत का डेमोक्रेसी है, वो किसके ऊपर चलती है। सबसे ज्यादा तो आपने देखा होगा कि कास्ट तो बहुत खेला जाता है, हिंदू मुसलमान पे बहुत पॉलिटिक्स खेली जाती है, बहुत राजनीति खेली जाती है। उसके बाद जो नई सोशल मूवमेंट है, आप फार्मर मूवमेंट को भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। फार्मर मूवमेंट को मैं नया नहीं कहूंगी क्योंकि फार्मर्स की मूवमेंट पहले भी चली है, ठीक है। नॉन कॉपरेशन, जैसे आप गांधी जी के अपने मूवमेंट्स पढ़ते हैं तो उसमें आप खेड़ा पढ़ते हैं, आप खेड़ा गुजरात, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये सब भी पढ़ते हैं। तो फ्रॉम वेयर यू कैन गेट टू नो दैट फार्मर मूवमेंट इज न्यू, बट इट हैज इमर्ज नाउ अगेन एंड अगेन, 2020 एंड नाउ इट्स 2024, ठीक है। तो फार्मर्स मूवमेंट भी आप इसमें पढ़ेंगे कि फार्मर मूवमेंट के क्या कारण थे, हाउ इट इवोल्व्ड, उसका पहले क्या स्ट्रक्चर था, अब क्या स्ट्रक्चर हो गया। आप, दिस इज अबाउट द डायनेमिक्स ऑफ इंडिया। और उसके बाद हम हमारी पॉलिटिक्स में और क्या पढ़ सकते हैं कि इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, आपने ये भी जनरली यू मस्ट हैव लिसन्ड अबाउट दैट कि सुना है सरहद पे तनाव है, सुना है सरहद पे तनाव है, अच्छा क्या देश में चुनाव है। सो सच काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी यू मस्ट हैव केम अक्रॉस कि हम जनरली क्या होता है, प्रेशर बॉर्डर पे दिखाना शुरू कर देते हैं कि हाँ, if you can relate, you can really relate that the movies like Uri, the surgical strike, and the Fulwama, that Pathankot movie. I cannot recall the name of that movie, but these movies are generally released during or the before of the general election in 2019, before the general election of 2019, just to divert the attention of the general public from the common or the usual area, to just divert it to towards the Pakistan or towards the border dispute, इसीलिए ताकि कि आपका जो है ध्यान एक तरफ से भटक जाए, ठीक है। आपका जो मुद्दे हैं, जो सरकारी असल में मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो पोल्यूशन का मुद्दा है, जो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है, वहां से आपका ध्यान भटके और आपका ध्यान सारा का सारा बॉर्डर पे चला जाए। वहां पर तो हमने F-16 गिरा दिया जी, हमने ये कर दिया जी, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जी, बस उसके थ्रू आपके वोट को ग्रैब करना। दिस इज हाउ आर इंडियन पॉलिटिक्स नाउ अ डेज रिवॉल्विंग अराउंड। आप देखें, राम मंदिर के अराउंड हमारी पॉलिटिक्स रिवॉल्व कर रही है। 1986 में जब ये अपने रथ यात्रा आई थी, रथ यात्रा 1991, एल के अडवाणी हमें सबको पता है, ठीक है। उससे पहले एक शाहबानो केस आया था, शाहबानो केस वाज देयर, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट केस, राजीव गांधी वाज, it is generally said that Rajiv Gandhi was able to, attract the Muslim community, the support of Muslim community, ठीक है। बट अब हिंदुओं को भी राजी करना था, इसलिए मंदिर के गेट खुलवा दिए, गेट खुलवा दिए तो दंगे भड़क गए। एंड बिफोर दैट, आप रिलेट करना ना, जो रामायण हमने कोविड में देखी है ना, कोविड से पहले जब वो शुरू की गई थी, was in 1986 during the regime of Rajiv Gandhi, the concept of Ramayana was brought into place and Ramayana got to release on Doordarshan. क्यों?
बिकॉज हमारे जीन्स को फिर से भड़काना था। ठीक है, हमारे अंदर से वो राम राज्य, रामायण, अयोध्या, दीज थिंग्स नीड टू बी एस्टेब्लिश्ड, वो फिर से हमारे अंदर लानी थी। इसीलिए वो जो रामायण थी वो तब 1986 में रिलीज कर दी गई। 1986 में उसका प्रसारण शुरू किया गया। ठीक है, जस्ट बिकॉज दैट, एंड आफ्टर 3 or 4 years द गेट्स ऑफ बाबरी मस्जिद, अयोध्या, ऑल दिस वर ओपन्ड। ठीक है, तो पहले पूरा बेस क्रिएट किया जाता है। एंड सो एज इन द केस ऑफ राम मंदिर इनॉग्रल, जो हमारा 22 जनवरी को अभी हुआ है, सिमिलर केस है, आप रिलेट कर पाएंगे। कोविड-19 में ड्यूरिंग द 2020 they have created the base of Ramayana again. They took that initiative again. Again, the fire got a lit. Again, it put on ablazed. Again, the concept of Ramayana was put into place. रामायण सबको दिखाई गई, लॉकडाउन का नाम लेकर सब, हर बच्चे बच्चे को रामायण पढ़ाई गई, रामायण दिखाई गई। ठीक है, एंड देन इन 2024 आप देखेंगे कि 2020 में लॉकडाउन होता है, जजमेंट आते हैं उसके बाद कि हाँ ये तो मस्जिद जी इनका है और जो मंदिर जी इनका है। ठीक है, उसमें मैं मुद्दों में नहीं जाऊंगी, वो डिटेल हम आगे ही पढ़ेंगे। बट आपको थोड़े से पॉइंटर्स बस कनेक्ट करवा रही हूँ कि पॉलिटिक्स को आप सिर्फ कंसेप्ट को लेकर ना चले, आप अगर उनके पॉइंट्स पे रिलेट करेंगे ना, कि हाउ इट हैपेंड, हाउ इट इवोल्व्ड, तो आप अपने आप समझने लगे कि हाँ, these आर द डायनेमिक्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तब हमें रामायण दिखाई गई और फिर हमारा बेस बनाया गया, हमारे अंदर श्रद्धा को एकदम जगा दिया गया। आज शायद ही कोई हिंदू होगा जो वोट मोदी जी को नहीं करेगा, यूपी वाले तो पक्का करेंगे। ठीक है, तो come back to the point, and do not take it on any personal assault, do not take it as a personal assault. They are just what the facts I have observed, or what the facts people have observed, or what the facts are presented by the newspaper and the scholars. Okay, I am here only to just deliver a lecture. मेरे पर्सनल अपने बिलीफ हैं, वो मैं आगे नहीं रखूंगी, वो जब मेरे से पूछा जाएगा मैं तभी दूंगी। उसके अलावा जो भी होगा, एक सिर्फ पढ़ाई के नजर से, कनेक्टिंग बिंदु के नजर से, उसी नजर से आपको देखना है, उसी नजर से आपको पढ़ना है। ठीक है, मेरा काम है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देना, एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इज ओनली पॉसिबल इफ आई गिव यू द प्रेजेंट एग्जाम्पल, if I give you the practical examples. Other than that, I do not want you people to cram, you people to just rectification, do the rectification, or just cram the facts. What the politics is not about. Politics is a science. That's why it is known as political science, because it keeps on evolving. You need to make experiments, you need to learn through experiments, you need to do experiments as well. That's why it's called as science. Okay. सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। फिर हम बात करेंगे इंडियाज रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग कंट्रीज में हमारी क्या रिलेशन है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है, सेंट्रल एशियन पॉलिसी क्या है, हु टुक द इनिशिएटिव ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी टू, एक्ट ईस्ट पॉलिसी कौन लेकर आया। ठीक है, ये सारी की सारी बातें जो हमारे नेबरहुड के साथ है, ये हम करेंगे। फिर हमारा आता है पोस्ट ट्रेडिशनल लेवल, जिसमें हम बिहेवियरलिज्म की बात करते हैं, पोस्ट बिहेवियरलिज्म की बात करते हैं। बिहेवियरलिज्म क्या कंसेप्ट है, कौन से ऑथर इससे, कौन से स्कॉलर इससे रिलेटेड हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम, स्ट्रक्चरल, फंक्शनलिज्म, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या होता है, इन सब मुद्दों के बारे में हम बात करेंगे। Then we will talk about the election, the process of election. What is the process? Single transferable vote. कितनी बार पढ़ा हमने, proportional representation, STV, single transferable votes. So we are going to discuss different types of election system. कौन से तरह के election system होते हैं, and why we opted for that only. Why we didn't opted for other options. ठीक है, तो we are going to discuss that part as well. Voting behavior in India. How to calculate the voting behavior in India. What is the voting behavior in India? Voting होती कितनी है हमारे यहाँ, ठीक है, कितने जो है एक्चुअल वोट होते हैं। रिसेंटली यू मस्ट हैव केम अक्रॉस द सिनेरियो ऑफ चंडीगढ़ मेयर केस ऑफ वोटिंग स्कैम,
that was happened and recognized by the Supreme Court of our country, that is CGI of our country, T.Y. Chandrachud, that all these things are scams and you need to bring back जो जो आपने वोट खराब किए हैं, उसी आदमी को, जो आम आदमी पार्टी का था, उसी एमएलए को आप वहां पर लेकर आए। तो जो भी उनका जजमेंट था, यू मस्ट बी फॉलोइंग दैट। सो ऑल दीज थिंग्स, जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स आप देख रहे हैं, यू नीड टू ऑब्जर्व दैट। यू नीड, अगर आप उसे ऑब्जर्व करते हैं, आप फॉलो करते हैं, ओनली इन दैट केस आप जो है अच्छे से परस्यू कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस में। एंड इट इज, आई रिपीट, एवर इवॉल्विंग, एवर कनेक्टिंग, आपको इवॉल्व भी करेगा, आपको कनेक्ट भी करना पड़ेगा, पर बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अगर एक बार कनेक्शन सीख गए ना आप, तो इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक और द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट यू हैव एवर केम अक्रॉस। सो आई बिलीव इंटरेस्ट भी क्रिएट करेंगे आपका। सो अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे, approaches to the study of international politics, concept of national power, what is national power, what is national interest, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, हम यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे, हम बिम्स्टेक के बारे में पढ़ेंगे। वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, दैट इज सार्क, and the association of southeast asian nations, that is ASEAN countries, and the EU, that is European Union, in the non alignment movement, and what are their role, how India can took the leadership, how India can initiate, how India can matlab how India can make the proper use of that global platform, present its leadership qualities. All these things we are going to discuss in detail, with pointers, with the pros and the cons, and other where some international organizations are not even mentioned there, but still, as we all know, that the importance of the Indian Ocean region has increased tremendously in the last, or I would say in the past 5 years, since the COVID-19, or since the 2019, the new regime of our country has started. The new regime of the government of our country has started since 2019, I believe. So, वैसे तो 20th century is known as 21st century is known as the century of Asia, ठीक है। बट जो अब जो हम अब देख रहे हैं, इंडियन ओशन रीजन का जो इम्पोर्टेंस बढ़ा है, उसके रिगार्डिंग जो नए हमारे ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं, जैसे कि क्वाड का नाम आपने सुना होगा, जिसे हम क्वाड्रिलेटरल डायलॉग के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्वाड क्वाड में आप पढ़ते हैं जापान के बारे में, आप ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए, these four countries. Other than that, Indian Ocean Naval Symposium के बारे में, IUNS के बारे में आप पढ़ते हैं। All these organizations which are directly or indirectly related to the Indian Ocean Region Association, or the concept of Indian Ocean. We are going to discuss with that part as well. Other than that, follow the concepts of, we are going to follow the concepts of Indian Ocean region, Indian Ocean Naval Symposium, Quad, ITU2, where we will discuss the India, Israel, US and the UK. So ये हमारा सारा का सारा ब्यौरा रहेगा, जो हम आने वाले कंसेप्ट्स में क्लियर करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस और द पॉइंटर्स जो हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले टॉपिक्स में, आने वाले सब्जेक्ट्स में। बट बिफोर आई स्टार्ट, और बिफोर आई गिव यू द एक्चुअल क्लासेस, वी विल लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट updated syllabus has not been available on the RPSC site yet, but as per the available data, took out from the sources, that the available part is that only, and उसी को बेसिक स्ट्रक्चर लेते हुए हम अपना सिलेबस जो है कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे। एंड फ्रॉम द टुमारो we are going to discuss the international politics part first. We will start from the Cold War, start from a basic structure like World War, Cold War, and so on. We will cover that part as well, from the senior secondary level to graduate to postgraduate level, and after that, the Indian political part. So, this was all about the introduction of today's session, and I hope you will get to know a lot. And it was just an introduction. Do join, do let us know what kind of approach you want
Whether you want a bilingual approach, whether you want just English approach or a just Hindi approach, just let us know below in the comment section. And thank you for watching. Thank you very much.